Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jagannath Swami Nayana Vakagami, Jagannath Swami Nayana Vakagami, Nayana Vakagami Baba Tume, Nayana Vakagami Baba Tume, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Jaya Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman Radhe, Jaya Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman Radhe. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। चलो मेरे पीछे दोहराइएगा। सार्थयाम अर्जुना साध्यो, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सार्थयाम अर्जुन साध्यो, कुर्वन् गीतमृतं ददाओ, पूर्वं गीतममृतं ददामि, अमृतो ददो लोकात्राय उपकाराय, लोकात्राय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। वह श्री भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता का अमृत प्रदान करते हैं, तो देश के तीनों लोगों के उपकार हेतु ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व में उन्हें मैं नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। मेरे पीछे श्लोक को दोहराइएगा। सहस्त्रयुग पर्यंतम शास्त्रयोगं पर्यन्तं हर्यद् ब्रह्मणो विदु ब्रह्मणो विदु, रत्रिं युगा सहस्रंतम सहस्रं देहो रत्र विदो जना। सहस्त्रयुगा पर्यंतम सहस्रयुगपर्यन्तं हर्यद् ब्रह्मणो विदु ब्रह्मणो विदु, रत्रिं युगा सहस्रंतम सहस्रं देहो रत्र विदो जना। सहस्त्रयुगा पर्यंतम हर्यद् ब्रह्मणो विदु रत्रिं युगा सहस्रंतम देहो रत्र विदो जना। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीरूपा जी द्वारा। जय श्रीरूपा जी। सहस्त्र 1000 युग युग पर्यंतम सहित अह दिन यत जो भ्रमण ब्रह्मा का विदु वे जानते हैं, रात्रिम रात्रि युग युग सहस्त्र नाम इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली, ते वे अह रात्र दिन रात विध जानते हैं जना लोग। अनुवाद। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, ये कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। ये कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेत द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। So this is little technical shloka today. So please pay little attention. तो यहाँ पे little calculation is there. जैसे ब्रह्मा जी काफू है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज चर्चा करेंगे। So in short, अगर ब्रह्मा जी की एज बताए तो इस 311 trillions, 311 ट्रिलियन years is the age of ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे एक कल्प, ये कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। I will show you the picture. वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे please have little calculation in your mind. तो यहाँ पे पहला जो कल्प का जैसे अर्थ आ रहा है तो I'll explain in the picture.
तो एक कल्प में क्या होता है, 4 युगों का 1000 चक्र। 4 युग का 1000 होगा ना, हर एक युग का एक टाइम पीरियड है। जैसे कलयुग का टाइम पीरियड अभी आएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कलयुग का टाइम पीरियड 4,32,000 ईयर्स है, जिसमें से 5000 निकल गया तो 4,27,000 अभी और बाकी है। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ कलयुग। तो वैसे अलग अलग युगों का भी टाइम पीरियड है, विल स्टडी। तो इन सभी युगों का जब 1000 चक्र होता है तो दैट इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा, एक दिन बनता है। तो सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप एक तरह से नितांत अभाव होता है। तो सतयुग के टाइम पे 100% प्योरिटी, देयर इज 100% प्योरिटी, पीपल लिव अ लॉन्गर लाइफ। तो उस समय मेडिटेट करते हैं लोग, बहुत ही पुण्यवान है। तो यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, मीन्स 75% प्योरिटी ना 25% कंटेमिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे युग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो पाप, दुराचार, ये सब भी फैलना शुरू हो जाता है। तो द्वापर युग इज 50-50, 50% इज गुड, 50% इट्स बैड। सबसे अंत इसका टाइम पीरियड कितना है, 8,64,000 वर्ष चलता है ये। दिस इज द टाइम पीरियड। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5000 वर्षों से भोग रहे हैं, अभी 5000 वर्ष हो चुके हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है। इन दिस एज इट सेज ऑलमोस्ट 100%, जैसे सतयुग का ऑपोजिट कलयुग। सतयुग इज 100% प्योर, कलयुग इज 100% बेकार है। टोटल कला, कपट, अज्ञान, अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार, एवरीथिंग इज इन द कलयुग। तो यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। अब देख रहे हो, ये ना प्रेजेंट में चल रहा है स्टेटमेंट, धारण करते हैं। अभी ये नहीं कि करेंगे मीन्स इन फ्यूचर। अभी तो कलयुग खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग तो इस तरीके से बोल सकते अभी फिनिश नहीं हुआ है। क्या अगर धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं मीन्स ये इस युग में ऐसा होता है। तो दैट इज करेंगे, ऐसा भी आया नहीं। तो मीन्स पहले भी कई युग बीत चुके हैं, तो इट हैज हैपेंड ऑल द टाइम। सो यहाँ पर भी इस युग में भी व्हेन इट इज ऑन द पीक, अभी तो 10,000 पीरियड का, 10,000 वर्षों का गोल्डन पीरियड है, जहाँ पे अभी इस्कॉन है, हरिनाम है, हम सुन रहे हैं। अभी ये टाइम पीरियड निकलेगा, इट्स टोटल पीक कलयुग। पूरा कलयुग पीक पे होगा। अभी आप देख रहे माता जी, अभी भी पीक देखनी है। यस, अभी भी पीक देखनी है, अभी भी कलयुग कुछ देख नहीं रहे हो आप। तो इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। तो अगेन द साइकिल बिगिंस, इसके खत्म होने के बाद। तो इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग मीन्स इट रिपीटेटिव है। तो ये चारों युग 1 सहस्त्र चक्र लेने पर ब्रह्मा के एक दिन, चारों युगों का 1,000 वर्ष जब कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में मतलब देखो एक युग का टाइम पीरियड कितना है, कलयुग का ही 4,32,000, इसका मल्टीप्लाई बाय 1000, इट्स टू मच। तो और वैसे चारों युगों का कर लो तो इट्स लाइक 1 डे ऑफ ब्रह्मा। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ब्रह्मा की दिन कितना है। तो इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि भी होती है। ये एक दिन का कैलकुलेशन है ना, इतना ही मिला के रात्रि भी है। तो दोनों का प्लस करोगे तो कितना जाएगा। तो ब्रह्मा की ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, ये मुझे गिनती पढ़ना भी नहीं आएगी, आप पढ़ लो, 311 ट्रिलियन ईयर्स इन शॉर्ट। तो इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता, यस इट्स अगेन एंड अगेन माता जी, हर जगह लीला अभी भी चल ही रही है ना। अभी तो कई जगह पे किसी ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा होगा, किसी में द्वापर चल रहा होगा। तो कृष्णा लीला आर इन प्रेजेंट, कोई पास्ट या फ्यूचर वाली बात नहीं, अभी भी चल रही होंगी ये लीला। ये है कि थोड़ा फेरबदल होता है लीलाओं में, मगर चल ही रही होती है। तो दैट इज द पास्ट टाइम, इट्स गोइंग ऑन, ठीक है, तो चलता रहता है। तो जैसे लिखा है, इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा समाप्त ना होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से ये बिजली की चमक जैसी अल्प है।
हाँ, जैसे हमारे लिए एक चींटी की आयु कितनी है, अभी मसल दें हम, मच्छर की आयु कितनी है, कीड़े की, एक माइक्रोब्स की कितनी एज होगी। फॉर अस इट्स टू शॉर्ट, बट वो मच्छर के लिए उस जूनी में वो बहुत ज्यादा है। हाँ? तो इट्स जस्ट द रिलेटिविटी टाइम थ्योरी। जैसे जहाँ के 6 महीने हैं तो स्वर्गलोक का 1 दिन होता है, यहाँ के 6 महीने वहां का 1 दिन। सो इट्स रिलेटिविटी टाइम, टाइम रिलेटिविटी थ्योरी अगर आपने आइंस्टाइन का पढ़ा हो, इक्वल टू mc स्क्वायर। सो टाइम रिलेटिविटी थ्योरी है यहाँ पे। ब्रह्मा जी का ऐसे लगता तो है कि बहुत ज्यादा है, मगर वहां के लिए इट्स लेस टाइम। तो जैसे रेवत नाम के एक राजा हुए, तो अपनी पुत्री रेवती को ब्रह्मा जी के पास ले गए कि इसके लिए योग्य वर ढूंढिए। तो उस समय ब्रह्मा जी बिजी थे, अंदर नाच गाना चल रहा था, तो बस बिजी, तो बाहर द्वारपाल ने बोला कि आप थोड़ा वेट कर लो, बिजी हैं, जब फ्री हो जाएंगे फिर आपको बुला लेंगे। तो बोले ठीक है। तो जब तक नाच गाना खत्म होता है तब तक एक युग बीत गया। जब वो राजा जा रहे कहते हैं वो, मैं मेरे को अपनी बेटी के लिए योग्य वर दे, कहते वो तो युग बीत गया, आप कहाँ कहाँ। हाँ, then later on they told, oh there is कृष्ण बलराम, तो पिछले युग के थे वो। तो ब्रह्मा जी के पास वो नाच गाने खत्म होने में ही नीचे आए तो युग ही बीत चुके थे। सो दैट इज इट्स टाइम रिलेटिविटी। वहां के लिए इट्स, हमारे लिए मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है, फॉर ब्रह्मा इट्स नॉर्मल। तो कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। तो ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वह भगवान की प्रत्येक सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि क्रिएशन का भार उन पे है ना। तो ये गुण अवतार भगवान के माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, देयर द गुण अवतारस, दे हैव इंपॉर्टेंट सर्विस टू डू क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन। हरि बोल। तो फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान की सेवा में है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो इट्स माइट बी द लॉन्ग टाइम पीरियड, मगर मृत्यु वहां पे भी है, ही है, उनका भी टाइम पीरियड खत्म होता ही है। ठीक, ओके, विल गो थ्रू दिस सेक्शन समरी। तो कल मैंने बोला था मैं समरी दूंगी, तो आई विल गिव यू द समरी। दिस इज सेक्शन ई, जहाँ पे 17 से 22 श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन है भौतिक और अध्यात्म जगत का। जैसे 17 से 19 के श्लोकों में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो भौतिक जगत है, यहाँ जीवात्मा है, living entity appear during each millennial year long day of Brahma and are vanquished during each night। देखिए एनिहिलेशन, जो धरती का ये जो समापन है, ये एक तो होती है फाइनल एनिहिलेशन, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, जब ब्रह्मा जी मरते हैं तब सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक एनिहिलेशन ब्रह्मा जी के दिन और रात में भी होता है, उसको पार्शियल एनिहिलेशन कहते हैं। भागवत में इसका वर्णन है, प्रथम स्कंद में, यदि आप पढ़ें प्रथम और दूसरे स्कंद में वर्णन है। सो पार्शियल एनिहिलेशन होती है, मतलब प्रॉपर सब कुछ क्लीन नहीं हो, बंद नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर वापस निकल के आ जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। मगर जब फाइनल एनिहिलेशन है तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। 20 to 22 विल रीड लेटर ऑन, आगे की स्लाइड विल सी फ्रॉम टुडेज वर्ड्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाय ह्यूमन कैलकुलेशन ब्रह्मा जी का जैसे एज टाइम पीरियड है, तो बताया जा रहा है कि हमारे हिसाब से ब्रह्मा जी का एज 311 ट्रिलियन ईयर्स इज मोर देन आवर इमेजिनेशन। तो जैसे ये चार्ट आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन सभी को दिख रही है अच्छे से? हरे कृष्ण, एवरीबॉडी वुड एबल टू सी द स्क्रीन? प्लीज से यस। जी माता जी। थैंक यू। तो ये यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, अगर ना समझ में आया तो आप खुद भी थोड़ा स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नीचे से शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे ब्रह्मा जी का ऊपर से ही आप देखें तो क्रिएशन से फुल डिवास्टेशन, ऐसे पार्शियल डिवास्टेशन होती रहती है ब्रह्मा के एक दिन, मतलब एक रात्रि जब आती है। हाँ, तो जैसे मैंने बोला एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, एक कल्प में 14 मनवंतर आ जाते हैं प्लस 15 संध्यास। नाइट इज द सेम लेंथ। क्या बोला गया यहाँ पे? ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प है, और एक कल्प का टाइम पीरियड कितना? 4.32 बिलियन ईयर्स, मींस 14 मनवंतर। और एक मनवंत्र क्या है? 4 युगों का साइकिल। 4 युगों का एक साइकिल जो होता है, जो भी इट्स टोटल 4.32 मिलियन ईयर्स। नीचे से देखिए, सतयुग का टाइम पीरियड कितना है? 1.728 मिलियन ईयर्स। त्रेता युग 1.296 मिलियन ईयर्स। द्वापर युग 864,000 ईयर्स एंड कलयुगा 432,000 ईयर्स। इसको कंबाइन करोगे कैलकुलेशन में टोटल कितना बना? ये
ऑलमोस्ट 4.32 मिलियन ईयर्स। तो ये 4 युग का जो कंपाइलेशन है, ये क्या है, एक मनवंत्र बनता है। ठीक है, एक मनवंत्र मतलब ये 4 युगों का सिंपल एक साइकिल। हाँ, तो एक मनवंत्र बना। ठीक है, और वैसे ही कितने मनवंत्र होते हैं? 14 मनवंत्र होते हैं। ठीक है, एक कल्प में, एक कल्प है 14 मनवंत्र, और उसके आगे ब्रह्मा जी का दिन बताया जाता है। यू ऑल कैन इमेजिन, या सिंपल से आप देख सकते हो 4 युगों का 1000 टाइम्स साइकिल्स, दैट इज लाइफ ऑफ ब्रह्मा। तो मनवंत्र और कल्प देखने हो तो दिस इज द कैलकुलेशन। हमारे जैसे मैथमेटिक्स में टर्म्स होती है सेंटीमीटर मीटर, तो वैसे यहाँ पे मनवंत्र कल्प टाइम पीरियड वो कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, सो टोटल एज कितना है ब्रह्मा जी का? 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। ठीक है, सो दैट इज। और ब्रह्मलोक में कौन लोग जाते हैं? जो कि ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है। ठीक है, वहां पे भी ओल्ड एज ब्रह्मा, क्योंकि भौतिक जगत ही है, से भी लोग वापस आते, रिटर्न टिकट होता है। हाँ, तो वहां कौन लोग जाते? जो एलिवेटेड सन्यासी से हम लोग भेजा जाता है वहां। तो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ ऑफ ब्रह्मा, so we'll do a little bit calculation. One day of Brahma is called a kalpa. One kalpa equal to 1000 cycles of 4 yugas. So you can have this calculation. ठीक है, so just pay attention to it. Chatur yuga sahasratu brahman dine uchyate. One day of Brahma is 1000 cycles of 4 yugas. Again I'm repeating. तो one युग साइकिल, एक युग साइकिल में ये जितना है 4 युग। ठीक है, और ऐसे 1000। हाँ, आप देख लीजिए सतयुग का टाइम के, सतयुग में क्या था, कल त्रेता में क्या, द्वापर में क्या, कलयुग में। So you have studied all those things. This is little calculation, so please you all can go through it. ठीक है, तो ब्रह्मा's life is also temporary. शिल प्रपात क्या बता रहे, कितनी ही लंबी आयु क्यों ना हो। आपने कई वृक्ष देखे होंगे, हाँ, उनकी आयु, कई वृक्ष बहुत पुराने पुराने होते हैं, बहुत लंबी आयु, मगर ऐसी लंबी आयु का क्या करोगे यदि वे भगवान की सेवा में ना जाए? If it has no use, what is the like fortune of being so long age? लोग अक्सर बोलते हैं अरे 100 साल जी के भाग्यशाली है। भाग्यशाली किस सेंस में? इंद्रदीप्ति में? इंद्रदीप्ति कर गया 100 साल में? नो, दैट इज नॉट द रियल गोल। हाँ, लंबी आयु तो वृक्षों की भी, कई वृक्ष हैं बहुत लंबी आयु के हैं, बट यदि वे जो हमारा जन्म है वो भगवान की सेवा में ना लगे। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स, और शंकराचार्य 34 ईयर्स, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और उस छोटे समय में ही दे हैव डन अ लॉट, बहुत कुछ दे के गए हैं। सो इन अ शॉर्ट टाइम आल्सो इफ वी कैन डू अ ग्रेट थिंग्स, जैसे कलयुग का मैथमेटिक्स बताता है कि कम में ज्यादा मुनाफा, तो वैसे ही अगर हाँ ज्यादा आयु में हम ज्यादा सेवाएं कर पा रहे हैं, मोर देन बहुत अच्छा है। बट अगर हम नहीं कर पाए तो बेहतर है कि जितना है उतने में, इट्स बेटर टू बी हैविंग अ लॉट। फिर ज्यादा लंबी आयु का क्या फायदा? अब डिमांड करो हमें मरना नहीं, बहुत ही लोग रियली दे डोंट वांट टू डाई। हमारे की एज भी मिल जाएगी, क्या ही करेंगे, बूढ़े होंगे तब भी सर्जरी वर्जरी कराएंगे। कोई बात है एक स्त्री, तो उसको बेचारी को थोड़ा समस्या चल रहा था, शी वाज वेरी सिक एंड अबाउट टू डाई इन अ वीक, कुछ दिनों मरने वाली थी। भगवान से निरंतर प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझे नहीं मरना है, मुझे थोड़े समय चाहिए, आई वांट टू लिव, आई वांट टू लिव। तो निरंतर प्रार्थना करती, बहुत इंटेंस रोना रोना, बड़ा प्रार्थना की। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हें 1 साल का मुहूर्त और दे दी। बोला ठीक है चलो 1 साल तो है, कम से कम मैं थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, मेरी बड़ी ट्रिप्स पेंडिंग थी तो वो हो जाएंगी। तो अब उसको पता चला कि ठीक है अब 1 साल है मेरे पास, तो हॉस्पिटल में ही थी, तो इलाज तो चल ही रहा था, टाइम पीरियड मिल गया उसको, मतलब ठीक होगी। तो उसने 1 हफ्ता और लगाया हॉस्पिटल में सर्जरी वर्जरी कराने में। थोड़ी अब साल टाइम है ही है तो स्मार्ट ही दिख जाओ है। तो उसने पूरा सर्जरी वर्जरी करा लिया, तो गई बाहर। बाहर जाते ही क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, सीधा ही भगवान के धाम। तो भगवान पे चिल्ला पड़ी, आपने तो धोखा दे दिया, मैंने सुना है भगवान अपने वचनों से मुकरते नहीं, आपने बोला मैं साल जीऊंगी, ये क्या हो गया, मैं तो अभी मर गई। कहती ओहो मैं तो पहचाने नहीं आपको। हाँ, पहचाना के पूरी सर्जरी के लिए पहचानेंगे गाँव से। तो यही हाल है। तो कल वीडियो, मरना कोई नहीं चाहता, एवरीबॉडी वांटेड टू लिव। हाँ, हमें क्यों मरने से डर लगता है? क्योंकि मरना नहीं चाहते, बिकॉज इट्स द सोल नेचर। क्योंकि जो आत्मा है वो मरणशील नहीं है ना, नहलने पे मानव शरीर न मर सकती है न जल सकती है, तो उसको कुछ हो ही नहीं सकता। बट थिंग इज अवर नेचर, वो आत्मा का नेचर है, मगर शरीर तो मरने वाला है। इसकी एक्सपायरी डेट है जो हमें नहीं पता, मगर इसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर हुआ था तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो एक्सपायरी भी है इसकी, मगर आत्मा की नहीं है एक्सपायरी। क्योंकि आत्मा का नहीं है तो आत्मा चाहती है जीना, मगर शरीर है वो बेचारा क्या करे, कितना खींचोगे, एक टाइम तो इसका आएगा ही ना जाने का। So it has a limit. So that we need to understand.
लोग ये कहते नहीं ब्रह्मा का जीवन, भाई कहीं तो अच्छा इतना जीवन है ब्रह्मा जी का, हम भी करोगे क्या, इतना साल जी के क्या करोगे, कुछ लाभदायक हो, कुछ जनरल हो तो फायदा हो, नहीं तो ऐसे ही हटके। So it appears fantastic, but from the viewpoint of eternity, it is as brief as lightning flash. मतलब लगता तो बहुत बड़ा है, मगर ऊपर के देखा जाए, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जब महाविष्णु जब क्रिएशन होता है तो महाविष्णु की सांस लेना छोड़ना पूरा एनिहिलेशन क्रिएशन हो जाता है, केवल सांस लेने छोड़ने में। सांस छोड़ी पूरा क्रिएशन हो गया, सारे यूनिवर्स बाहर आ गए, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आउट महाविष्णु। जब सांस अंदर लेते हैं सब खत्म हो जाता है। अब बोलो हमारी सांस लेना छोड़ना मतलब इतनी कम विधि, बट इस टाइम रिलेटिविटी। अब वही चीज यहाँ महाविष्णु है, वही चीज भगवान गोलोक में ऐसे पलक झपकाते हैं और ये क्रिएशन एनिहिलेशन हो जाता है। समझ लो हाउ ग्रेट गॉड इज, कितने बड़े हैं। तो इट जस्ट पलक झपकाने की बात है भगवान के लिए, और हमारे लिए तो इट्स लाइक प्रोसीजर। इट्स सिंपली ब्रह्मा जी का एक भी जैसे बिजली चमकती है उतना ही टाइम पीरियड है ऊपर के लोगों के, मगर हमारे लिए बहुत लंबा है। So in the causal ocean, there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. जैसे causal ocean जो कारण दक्ष विष्णु है, वहाँ विष्णु तो उनके पोल से बहुत सारे यूनिवर्सेस जब निकलते हैं, करण सागर से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं। तो इट्स लाइक देयर आर सो मेनी ब्रह्मास इवन। एक बार ब्रह्मा जी भगवान के पास में जाते हैं तो बाहर द्वारपाल खड़े हैं, भले रुको पूछ के आने दो। तो पूछने जाते हैं तो भगवान बोलते कौन से ब्रह्मा है। तो जब ब्रह्मा जी को बताया कि आप कौन से ब्रह्मा, कहते कौन से क्या मतलब है, मैं ही हूँ। कहते नहीं अभी आओ, बताते। तो अंदर आते थे तो 100 सिर वाले, 1000 सिर वाले हैं, इधर 100 मतलब 10 सिर वाले सारे ब्रह्मा। जी देयर आर सो मेनी ब्रह्मा। यस, हमारा यूनिवर्स सबसे छोटा है जहाँ पे 4 सिर वाले ब्रह्मा जी ओके, बाकी यूनिवर्स बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग अपने को ही बड़ा वो प्राउड फील करते हैं, बट आवर यूनिवर्स इज द स्मॉलेस्ट वन, इसमें 4 सिर वाले ब्रह्मा है, बाकी और भी कई बड़े यहाँ पे और भी अलग अलग। तो ब्रह्मा एंड हिज क्रिएशन आर ऑल पार्ट ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स। तो ये जो ब्रह्मा है ये इनकी क्रिएशन है, ये समझो इनकी लंबी आयु अवधि है, तो ये आध्यात्मिक जगत के नहीं, भौतिक जगत के हैं। सो इसलिए यहाँ पे भी कांस्टेंट फ्लक्स है, मींस इट्स गो ऑन चेंजिंग, देयर आर आल्सो चेंजेस। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं फियरलेसनेस नॉट गिवन इन ब्रह्मलोक। तो ये जो अभय अभय बनने की बात है, ये ब्रह्मलोक में भी नहीं, ब्रह्मा जी का भी मृत्यु है। तो डेथलेसनेस, फियरलेसनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ ओल्ड एज डिजीज एक्सिस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो अगर आपको मृत्यु से निर्भर रहना है, अभय बनना है, कुंठ नहीं चाहिए, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जन्म मृत्यु नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, तो ये केवल भगवान के धाम में है। जैसे एक बार मैं वृंदावन में थी, तो हम लोग परिक्रमा के लिए जा रहे थे, हमारे गुरु भाई गुरु बहन धार मोरेशी से एक प्रभु जी आए हुए थे, मेरे गॉड ब्रदर में, मुझे नाम नहीं याद है उनका। तो एक छोटा जैसे ब्रजवासी ने, छोटे बच्चे पैसे मांगते हैं, पैसा दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपये दे दो। He was asking 1 रुपया दे दो, बोलते हैं हे राधे 1 रुपये दे दो, दे 1 रुपये दे दो। तो कह रहे हैं, तो कहते हैं देखो तुमने गोलोक क्यों छोड़ा। इट रियली टच्ड मी अ लॉट। कहते तुमने गोलोक क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ा तो मांगते नहीं, डोंट यू नो दैट यू आर अ रिच पर्सन। कहते गोलोक क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें अपने भोजन का, अपने सब कुछ देखना पड़ता है। तो धाम में ऐसा, भगवान के गोलोक में ऐसा कुछ नहीं। वाई यू लेफ्ट गोलोक, क्योंकि अब कष्ट में भी हो, कुछ तकलीफ भी है, तो वाई, बिकॉज वी हैव लेफ्ट कृष्ण, हम भगवान को छोड़ आए हैं। किसी ने एक बार गुरु महाराज से प्रश्न पूछा, कहते हैं कि हम भौतिक जगत में क्या कृष्ण प्ले कर रहे हैं क्या हमारे साथ, है हमारे से खेल कूद कर रहे हैं क्या, मजाक चल रहा है क्या, हमें इधर भेज दिया। कहते हैं इट्स नॉट कृष्णा प्लेइंग, इट्स कृष्णा पेनिंग। कृष्ण खेल नहीं रहे हैं, वो कृष्ण को दर्द करता है जब हम छोड़ के आते हैं। अब कोई भी बच्चे माँ बाप को छोड़ के जाएंगे तो माँ बाप को सुख होंगे क्या, दे विल बी वेरी पेनफुल फॉर देम, इट्स नॉट प्लेइंग। ठीक है, वही बताया यहाँ पे। तो ये चीजें क्या है, ये भौतिक जगत के बहुत परे हैं, जैसे भगवान के धाम की बात की जा रही है। Some say that there is fearlessness on Brahmaloka as well. Thus, it is not possible for the sannyasi to die there if they desire to stay there. कई लोग कहते हैं कि वहां पे भी आप fearless रह सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। If even Brahma, the master of that planet, must die, what can we say of others? ब्रह्मा जी की मृत्यु है ना, बोला 100 वर्ष की आयु है, चाहे कितनी लंबी हो, मगर मरना तो उन्होंने भी। तो प्रभा कहते हैं इन द मटेरियल यूनिवर्स नॉट इवन ब्रह्मा इज फ्री फ्रॉम प्रोसेस ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। भौतिक ब्रह्मा भी, फिर बता मैं ब्रह्मा जी बनना है। हम भी वैसे ब्रह्मा रह चुके हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हमारा जो पहला जन्म है वो ब्रह्मा के रूप में ही हुआ है। तो जीवा बॉर्न एज ब्रह्मा जी फर्स्ट टाइम, बट वी आर फॉरगेटफुल कौन से टाइम ब्रह्मा थे हम, रहे हैं।
So those who are knowledgeable of scripture, who know that the day of Brahma lasts 1,000 yuga, also know that the night lasts 1,000 yuga, because they are north of day and night. तो जो knowledgeable है, शास्त्र जानते, वो जानते कि ब्रह्मा जी का क्या एज है. By such days, fortnight and month pass. इस तरीके से फिर अंत ब्रह्मा जी का भी आता है. तो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? He try to make best use of bad bargain. हाँ, तो यहाँ भौतिक जगत में होना भी कोई एक अच्छी, क्या कहते हैं हम लोग, जब सब्जियां या माताएं जाती हैं शॉपिंग करने, तो बार्गेनिंग. बार्गेनिंग को हिंदी में क्या, मानना नहीं, मोल भाव कहते हैं माता जी. हाँ, मोल भाव करना. क्या करना? मोल भाव करना. मोल भाग करना. अच्छा, मोल भाव जी. श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि. तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे माँ विष्णु है, लक्ष्मी जी सेवा करें, उनके नाभि से ब्रह्मा जी कमल में प्रकट हो रहे हैं. कितने यूनिवर्सिटीज है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम. जैसे हमने स्टार्टिंग में सेकंड कैंटो जब मैंने पढ़वाया था भागवतम का, तो आई एक्सप्लेन्ड अबाउट क्रिएशन. तो सिमिलर वे. हाँ, तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, बलदेव उद्देशन कहते हैं, हु आर दीस नोड्स ऑफ ब्रह्मा's लाइफ टाइम. ज्ञानी हैं जो जानते हैं, क्रिएशन के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते. दे नो दिस इज जस्ट स्पार्क, खत्म हो जाएगा इसी टाइम पे. Why not? Because only planets till Swargaloka are destroyed at the end of Brahma's day. People on Maharlok can see Brahma's day and night. यहाँ पे एक चीज और है कि जब ब्रह्मा जी का दिन और रात होता है तो सिर्फ स्वर्ग लोक तो के विनाश होता है, ऊपर के लोग खत्म नहीं होते हैं. जब फाइनल एनिहिलेशन होता है तो ऊपर का भी सारा खत्म होता है. या तो पूरा ही खत्म हो रहा है, ब्रह्मा जी को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे का खत्म होता है, नीचे के लोगों का. तो यहाँ लिखा है these nodes of day and night are distinct from nodes of day and night based on the movements of the sun and night. हाँ, जैसे हम लोग सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से दिन रात देखते हैं, मगर ये दिन और रात थोड़ा अलग है. हाँ, this verse node refer to persons situated on elevated planets such as Maharlok. तो ये महारलोक के लोग जानते हैं, this is all the above planet. तो ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी का भी दिन और रात आता है. तो they are knowing all those things. People on Maharlok can see Brahma's day and night. तो महारलोक मीन्स उससे भी ऊपर का लोग. ऊपर का मीन्स it's अपर प्लैनेटरी सिस्टम. तो स्वर्ग लोक तक यहाँ पे क्या होती है, विनाश होता है, वो लोग नहीं जानते, मगर ब्रह्मा जी का दिन और रात महर लोक के लोग जान पाते हैं. तो जैसे इस श्लोक में पीछे में हमने पढ़ा, तो दिस इज द ब्रह्मा जी डे एंड नाइट. इसमें लिटिल कैलकुलेशन था, यू जस्ट प्लीज गो थ्रू द स्लाइड वन मोर टाइम इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. सो दैट इज दिस. सो डोंट एस्पायर टू हैव लाइफ लॉन्ग लाइफ. और उसके लिए चेष्टा मत करिए, जितनी है उसको इस्तेमाल करिए. बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन आई से. तो ये मनुष्य जीवन भौतिक जगत में होना, इट्स नॉट अ गुड बार्गेनिंग, इट्स अ बैड बार्गेन. बट टू हैव अ ह्यूमन फॉर्म इट्स अ बैड बार्गेन. मगर इसका बेस्ट यूज करना चाहिए. ये नहीं ओ आई विल एलिवेट टू ब्रह्मा जी, मेरे पास बहुत जन्म हो जाएंगे, स्टिल ही विल डाई. बेस्ट इज टू यूज योर टाइम नाउ. So those who are less advanced than the above mentioned persons, the inhabitants of Swarg, Earth and the lower planet will meet destruction in each day of Brahma. तो क्या लिखा है अगले श्लोक में, अव्यक्त व्यक्त सर्वा भवन्ति अहर आगमे रत्र्यागामे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त्वा समन्यते. लेट मी रीड इट आउट. क्या लिख रहे हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त मीन्स मैनिफेस्ट और नॉन मैनिफेस्ट. ठीक है, अंग्रेजी में ज्यादा बताया जाए तो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होना. ठीक है, नेक्स्ट श्लोक. भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिग्मावयाश पार्था प्रभवत्या अरागमे. जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जबकि रात्रि होते ही वह अस्वायतः विलीन हो जाते हैं. अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं. कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य प्लीज गो है. एनी ऑफ आरती माता जी पढ़िए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस दरा लोक में आना होता है. वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निमंतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं.
किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोत्गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे उस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनः जन्म के चक्र से मुक्त होकर सदा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ठीक कह रहे हैं, एट द बिगनिंग ऑफ ब्रह्मास डे मैनिफेस्ट होते हैं और जब रात्रि होती है तो अनमैनिफेस्ट मतलब विष्णु की अंदर दोबारा समा जाते हैं और जब दोबारा दिन होता है तो दोबारा बाहर निकल के आ जाते हैं। So Brahma's day and night. At the beginning of Brahma's day, all living entity become manifest. From manifested and night, सब लोग क्या मर्ज हो जाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो the planet, the concept of 4 yugas or epochs in Hinduism, ये पढ़ा है हम लोगों ने। The planet and inhabitants above स्वर्गलोक are not destroyed at the end of Brahma's day. तो स्वर्गलोक के जो ऊपर के लोग हैं, maybe I can show you the image. Just hold on. तो ये इमेज दिख रही है आपको, ठीक है। ये इस साइड वाली इमेज देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के लोग हैं सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक। हाँ, तो स्वर्गलोक के ऊपर कौन कौन से हैं? महर, जन, तप और सत्यलोक। और भुवरलोक के नीचे नीचे के लोग हैं अताल, विताल, सुतल, तलतल, महातल और सतल, पताल लोक। हाँ, तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है ना, दिन और रात वाला, उसमें जो डिवास्टेशन होती है वो स्वर्ग लोक तक होती है, ये 5वें नंबर तक। ऊपर के जो 4 लोग हैं सत्य, तपा, जन्म, इधर कुछ नहीं होता। तो ऊपर के लोग नीचे वाला देख पाते हैं ब्रह्मा का दिन और रात, ठीक है। तो मगर जब फाइनल एनिलेशन हो तो एवरीथिंग इज फिनिश, ठीक है। सब जाके कहा माँ विष्णु के दिन अंदर जाके मिल जाता है। दिस इज द अगेन इमेज यू कैन सी, मे बी आई कैन शेयर इन द ग्रुप, आई विल शेयर दिस इमेज, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो महाविष्णु के अंदर वो चला जाता है। तो ये समझ में आया, ऊपर के 4 लोग जो वो खत्म नहीं होते, ठीक है। तो at the commencement of Brahma's day, when Brahma was awakened from sleeping state, all body, sense, object, enjoyment, places of enjoyment became manifest. और जब दिन रात होती तो सब कुछ, जैसे हम लोग उठते हैं तो हम लोग एक्टिव हैं, when we are asleep तो हमें कुछ नहीं पता, है ना। तो उस तरीके से हम स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं महाविष्णु के अंदर। तो मर्जिंग इनटू द प्रधान किसको कहा जाता है? महाविष्णु को। विल ओनली टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's life. Thus avyakta refer to the sleeping state of Brahma. Brahma जब सोने जाते हैं। So this was clarified that the knowers of day and night also know the cycle of unmanifest and manifest. ठीक है। Next shloka. But if they all disappear, they may not appear again. This fear arises from the logic that once being destroyed, a thing will not manifest again. This was refused that idea. कुछ लोग कहते हैं अच्छा खत्म हो गया तो फिर वापस कैसे प्रकट हो जाएगा? कुछ खत्म हो गया तो कैसे प्रकट होगा? So मगर इस चीज को रिफ्यूट यहाँ पे किया है, refuting the possibility of destruction of merit or demerit of karma and unbroken succession of creation delusion. इसके बारे में यहाँ बताया गया है श्लोक में। Again and again, when Brahma's day arrive, all living entity come into being. With the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. तो दोबारा वो आता है। तो कैसे? ये श्लोक आप देख रहे हैं। Use human life fully devotional service. अगर आपको इस चीज से सफर, end of Brahma's life, मतलब ये आप साइकिल्स देख सकते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए हमको? भूत्वा प्रलेत्य से, if we have to save ourselves, to use human life fully in devotional service, chant,
Krishna's Mahamantra. End of life, go back to Godhead and become eternally blissful. तो ये क्या है? तो ड्यूरिंग ब्रह्मा's डे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये सब नहीं जाना पड़ेगा हमको. ये जब साइकिल्स देख रहे हो, you don't have to go through this. तो 4 categories of universal annihilation: नित्य, नैमित्तिका, प्रत्यक्षा, अत्यंतिको. क्या लिखा है? At every moment, time invisible transforms the body of all created beings and all other manifestation of matter. This process of transformation causes the living entity to undergo the constant annihilation of birth and death. This is called nitya or constant annihilation. तो 4 प्रकार के annihilations हैं. ये हम लोगों ने भागवतम के बारे में ये स्कंद में बताया गया 1.2.4 आई थिंक और 12.4, तो उसमें ये बताया गया है. तो फर्स्ट annihilation जो डायरेक्ट कांस्टेंट है, चल ही रहा है ना हम लोगों का भी. और नैमित्तिक हो 1000 cycles of 4 युगा constitute 1 day of ब्रह्मा. तो ये दिन और रात वाला, ठीक है. नेक्स्ट है प्रकृतिको. when Brahma's lifespan of 100 years is finished, there occurs the प्रकृतिका और total material annihilation. जब ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो जाता है, at that time the 7 elements of material nature beginning with the Mahat, the entire universal egg composed of them are destroyed. एक तो कांस्टेंट है, जैसे हम लोगों का कांस्टेंट चेंज हो रहा है. सेकंड, ब्रह्मा का दिन और रात वाला एनिहिलेशन. तीसरा, जब ब्रह्मा की लाइफ टाइम 100 years की खत्म हो जाती है. और लास्ट है अत्यंतिको. when a person achieves knowledge of absolute, he understands factual reality, he perceives the entire created universe as separate from absolute and therefore unreal. This is called atyantika, final annihilation. Final is false ego through bhakti. Final क्या है? भक्तों के लिए कि बस अब यहाँ फाइनल एनिहिलेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी. immediately before that you are gone back home, back to Godhead. that is for devotee. but ऐसे 3 एनिहिलेशन ये चारों के बारे में भागवतम में वर्णन है. ठीक है. तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? पहला, Krishna's abode is non different from him. ठीक है. Eternal, free from birth and death. भगवान के धाम के बारे में जानकारी मिल रही है यहाँ पे. क्या है कि भगवान से भिन्न नहीं है. दूसरा, जन्म मृत्यु नहीं है. इनफेलिएबल है. अनलिमिटेड ब्लिस है वहां पे. सब इच्छाएं पूरी होती हैं. ऑल अट्रैक्टिव है. अनमैनिफेस्ट टू मुंडेन आइज, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता. दिव्य है. दिस इज आवर सुप्रीम डेस्टिनेशन एंड देयर इज नो प्लेस ऑफ अ प्लेस ऑफ नो रिटर्न. तो ये भगवान का आध्यात्मिक जगत है. कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसी जगह? सारी इच्छाएं पूरी हो रही. एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. कहीं गंद कूड़े का ढेर नहीं दिखेगा. जैसे दिल्ली में ना कूड़े का पहाड़ ही बन गया हुआ है. देखा किसी ने? हाउ मेनी ऑफ यू सी दिल्ली में एक पहाड़ बना हुआ, पूरा कूड़े का पहाड़ है. देखा किसी ने? हाँ माता जी, मैंने देखा हुआ है. देखा ना? तो उसी में तो चलो बढ़िया. तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा भगवान के बारे में. कल्पतरु है. एनी टाइम यू कैन फुलफिल योर डिजायर. कोई रिटर्न टिकट नहीं. जमुना के पास है. लेस इंटेलिजेंट अंडरगो ट्रांसमाइग्रेशन, बट इंटेलिजेंट स्टॉप द साइकिल. तो जो कम बुद्धि वाला है वो बार बार आता जाता रहेगा, आनी जानी. मगर जो बुद्धिमान है एक ही बार में बस काम खत्म, इसके बाद नहीं. तो लेस इंटेलिजेंट इसी जगत में रह जाते हैं, नीचे से ऊपर. ये पाताल, रस्तल, मातल, तल, सुतल, पिताल, अतल, भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक. इधर ऊपर नीचे जाता रहेगा. ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. तो नीचे के 7 लोग हेलिश प्लैनेट माने जाते हैं. फिर हमारी धरती लोग और ऊपर के हेवनली प्लैनेट. नर्क स्वर्ग आता जाता रहेगा. Thrice the transmigration according to their karmas. So जैसे कर्म वैसा. So take, तो बुद्धिमान व्यक्ति take to Krishna consciousness fully. chant हरे कृष्णा. तो क्या है? महामंत्र का जप करिए निरंतर. Just hold on. तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अभी आप देख ही रहे हैं what he says. Take to Krishna consciousness fully. Chant Hare Krishna Mahamantra. Even in this life, transfer themselves to spiritual planet and become eternally blissful. यानी कि कई जन्म लग जाएंगे. इस जन्म में भी कर सकते हो. कई लोग पूछते हैं, प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि कितना समय लगता है पूर्ण कृष्ण भावित बनने में. प्रभुपाद ने कहा 1 moment. खटवंग महाराज का उदाहरण दिया गया कि एक क्षण में भी आप कृष्ण भावित हो सकते हो. It depend upon you. तो बलदेव देवशन क्या कहते हैं? Again, don't get into the cycle of karma chakra. Just get out of all those things. So, by the rebirth of everyone stated in verse 16, ये हम लोगों ने पढ़ा. इसके आगे के 20 to 22 we'll discuss tomorrow. We can discuss, but maybe we'll take it tomorrow.
ठीक है, आगे कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज गो थ्रू द ब्रह्मा's लाइफ साइकिल दैट द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, सो देखो क्वेश्चन भी पहले बताया मैंने आप, तो उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बट द पॉइंट इज जितना भी यहाँ पे जस्ट इन अ शॉर्ट, जैसे बता रहे हैं मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इन शॉर्ट अगर हमारी बुद्धि इतनी नहीं भी चलती, हमें क्या करना है? नाम जप करो और भगवत धाम जाओ, इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं है। as simple as that, what Prabhupada has given us was follow as it is and go back home, back to Godhead. No, don't think स्वर्ग लोग चले जाए, मर लोग चले जाए, ब्रह्मा जी बन जाए, नहीं, एक बार जी बने हम लोग भूल गए। हाँ, तो बेहतर है भगवान के धाम जाके जो कुंठा से जितने भी कला कलेश है उनसे मुक्त है वहां जाए। अक्सर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लाइक कोई ऐसी जगह जाने बस भाग जाऊं दुनिया से, मगर कहाँ जाएंगे? कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे भी यही हाल है। सो दैट इज ऑलवेज देयर। जैसे परिवार जन कई बार छुट्टियों के लिए पैसा एकत्रित करके रखते, कहते फिजी आइलैंड जाएंगे। फिजी बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर आइलैंड है, कहते वहां जाके एंजॉय करेंगे। पर जैसे ही जैसे 5 दिन का टूर है तो वहां जाते हैं, जैसे एक दिन कम होता है, एक दिन वो एंजाइटी बढ़ती है, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, अरे हमें कल तो जाना ही है। दे वॉन्ट एबल टू एंजॉय देयर। So material world nature is like that way. So don't try to make adjustment here, Srila Prabhupada says. हमें यहाँ पे adjustment करने की जरूरत नहीं है। Be intelligent enough. It's not a fit place for gentlemen. Try to go back home, back to Godhead. ठीक है, तो यहीं पे विराम लेंगे, हमारे पास थोड़ा सा समय है, किसी का कोई प्रश्न हो, ठीक है, टिप्पणी हो, most welcome, and if nothing then we can stop up. हरे कृष्ण। Anything anyone wants? Yes, जी मेरा क्वेश्चन है, जी मेरा ब्रो। क्वेश्चन है आज का जो हमारा ये श्लोका था, इसमें मुझे ये चीज पूछनी थी कि माता जी जैसे इसके अंदर इस श्लोका में हमने डिस्कस किया कि ब्रह्मा जी की उम्र एज वगैरह जो कितनी है और अलग अलग डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मतलब एक अगर हम कॉमन मैन की नज़र से देखें तो भगवान हमें क्यों बताते हैं कि मतलब ब्रह्मा जी की इतनी एज है, उनका क्या ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसकी? किस चीज की ये क्यों बताया जा रहा है हमको? जी जी जानकारी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? अगर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कश्मीर है, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ जन्नत मानी जाती है, so would you ever imagine to go to that place? अगर उसकी एडवर्टीजमेंट होती है इसीलिए ताकि लोगों को आकर्षित किया जाए, है ना? तो इसीलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए we don't know. But if the advertisement is there, we got to know ऐसी भी जगह, okay, I should go. Similar way, Krishna is telling us कि यहाँ पे कृष्ण हो। हाँ, please. क्या ये कहना सही होगा कि भगवान इसीलिए हमें ये सब चीजें बताते हैं कि जो मतलब दुष्ट जिनकी मेंटालिटी डेमोनियक होती है, जो ये सोचते हैं कि हम ब्रह्मा बनेंगे, या मतलब जो मतलब सेवा भाव में नहीं है, तो उनको Yes. ये बताने के लिए कि भाई जो ब्रह्मा है स्वयं जो क्रिएटर हैं, मतलब जो क्रिएशंस करते हैं, तो उनका भी मतलब ही इज आल्सो टेम्पररी इन नेचर, Yes. मतलब उनका ही इज आल्सो इन बर्थ साइकिल। तो मेरे को जहाँ तक लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि भगवान इसीलिए हमें ये बताते हैं कि जिसके दिमाग में ये डाउट होगा या ऐसी शंका होगी तो वो क्लियर हो जाए कि भाई To attract people to go to Goloka, and जो फुलिश लोग हैं उनकी भी बुद्धि थोड़ी शांत हो जाए, उनको भी बताने के लिए कि वो व्यर्थ के अपने प्लान्स कर रहे हैं, to move here and there like that. जी माता जी, ये मेरा क्वेश्चन था। और माता जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना बहुत हैरानी होती है कि मतलब लोग जो हैं, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज़ को कि लोग ना खुश बहुत हैं उस जगह में। मेरे को एक बात की मेरे को ये चीज़ ना समझ नहीं लगती कि हाउ दे आर हैप्पी। क्या कहते हैं लोग मतलब मैं ज़्यादातर लोग को देखता हूँ, जैसे अगर आप सोशल मीडिया में देखो तो मतलब एक बड़ी परफेक्ट लाइफस्टाइल को एक मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब कि लोग बड़े खुश हैं। तो उनको एक मतलब ऐसे लगता है कि यार दे आर जस्ट प्लास्टिक पीपल। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस होते चली रही हैं, मगर वही बात है, देयर आर एक्चुअली द साइकोलॉजी सेज, कभी साइकोलॉजी पढ़ना no, I have studied a lot, so it's kind of I can understand. क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सुख लगता है। लाइक सम पीपल, भौतिक जगत में क्या नेचर होता है, सामने वालों को मतलब दर्शाना कि हम सुखी हैं, सामने वाला सोचे अरे मैं तो सुखी नहीं हूँ, तो भी कुछ और करे,
तो शो बॉटम लाइफस्टाइल चल रहा है, इंटरनली देयर इज नथिंग, इट्स ऑल शैलो, देयर इज ऑल शैलो इनसाइड विद इन। तो कहने का इसी कारण इट्स लाइक कि दे वांटेड टू शो कि नहीं हम बहुत खुश हैं, आप दुखी हो। दूसरों को दुखी, एक्चुअली वो खुद को खुशी नहीं, दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं। टू मेक देम अनहैप्पी दे आर शोइंग ऑफ दे आर हैप्पी। माता जी इसके कारण मेरे को सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम इनएक्टिव हूँ टोटल, मैं ना वेरी गुड, इंस्टाग्राम में यूज वेरी गुड। तो मेरे को ये बड़ी एक मतलब एक कह लो कि एक ना बड़ी झूठी दुनिया लगती है, बहुत ही ज्यादा झूठी ही है, बिल्कुल दिखावा है रियलिटी कि पर। अगर सारे सुखी होते हैं तो घरों में कलेश क्यों होते? बिल्कुल ये बड़ा इल्यूजनरी लाइफस्टाइल है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं मतलब सोशल मीडिया से टोटल लोग कट आउट। सुखी होते हैं तो ड्रग्स का सहारा क्यों लेते? लोग सुखी होते तो क्लब्स में क्यों जाते? Why there are divorce cases? Why there are so many like what do you call, so many abuse cases? Why so? If they are happy, they are not happy. They're just showing up. कि सोच रहे हैं कि कपड़ों में खुशी है, शायद मूवीज नहीं कर रहे हैं तो खुशी है। The youngsters following up the cool lifestyle. They are like parents को बोलते हैं, oh you don't know how to be cool. हमें पता cool कैसे रहना है। हाँ, I'll be wearing the nonsense dress and I'm looking cool. आपको आप up to date नहीं हो, and they feel I'm happy, but that is not happiness. That doesn't bring happiness. They thought, oh maybe I will go somewhere else and I'll show I've been to these places. That again not bring happiness. क्योंकि जब तक हृदय का संतुष्टि नहीं है, बाहर चीजें कितना खुशी देगा? कहीं बाहर जाना है, मगर हार्ड एंडेवर भी तो कितना है, पैसा चाहिए। Oh, I'm using expensive things. Does that make you cool? No. I remember one time our Vivek Oberoi, you know, he's a famous actor. No, he's not acting. मतलब अभी एक्टिंग नहीं में नहीं है, he has his own business. So he was saying कि in my college day I started smoking just to be cool and just to be fit in the society I am in. But I never liked smoking. मुझे स्मोकिंग कभी पसंद नहीं था, मगर सिगरेट पीना इज लाइक जस्ट कूल। बट व्हाट कूल अबाउट स्मोकिंग सिगरेट? कि दोस्तों के बीच में अच्छा लग रहा हूँ। If I'm drinking beer, if I'm going to bars, if I go to movies, if I'm sleeping late night, if I'm waking up late night, it's quite very cool. And I remember during my school time, even I used to do the same thing. I used to tell them, oh, Sundays I wake up quite very late, as if it's very cool thing. इसमें cool क्या है? It's total undisciplined thing. फ्लॉन्ट, हर किसी को फ्लॉन्ट करना है। Yeah, it's more about the flaunting. It's not internal satisfaction कहीं नहीं है. It's just about flaunting. And we're showing we are very cool. What about coolness is there? Showing off with coolness and bringing happiness, it's never. So better to be realistic. Thank you. Yeah. किसी और का कोई प्रश्न? Anyone else having anything to say? Questions or comments? So इसलिए don't go after followers and likes and comments. How many people likes and comment? Like तो कोई भी thumbs up ऐसे देता है videos में, but it's not about really they are liking you. Yes, मनमाता जी. हरे कृष्ण माता जी मैंने पूछना था, जो एट द एंड ऑफ कलयुग जब हो जाता है तो सब कुछ मर्ज होता है, तो ब्रह्मा का लाइफ भी एंड हो जाता है। तो जब ब्रह्मा जी का देखिए, अभी हमने पढ़ा ना 4 प्रकार के एनिलेशन है, 3 है। ब्रह्मा जी के दिन और रात में ब्रह्मा जी एनिलेट नहीं होते, सॉरी, जब रात्रि होती थी, he was also in sleeping state, means ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मलोक that is सत्यलोक, that is the topmost planet, that is हमने पढ़े ना ऊपर के 4 महर, जना, तपा और सतलोक, 4 लोक रहते हैं। स्वर्ग लोक तक सब अनमैनिफेस्ट स्टेट में चला जाता है। तो स्वर्ग लोक भी क्या मर्ज होता है? यस, वो भी महाविष्णु की बॉडी में चला जाता है। जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो दोबारा से सब मैनिफेस्टेड हो जाते हैं। और एक बार जब ब्रह्मा जी के 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, when he dies, then finally everything finish. ठीक। तो माता जी ये भी है कि एक उन्होंने ऐसे अभी तात्पर्य में पढ़ा था कि एक कल्प तक फिर कुछ मतलब मैनिफेस्ट नहीं होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो उस टाइम पे की रात है। उस टाइम पे वो कहाँ जाते, कौन से लोक में होते हैं? ब्रह्मा जी इन इज लोक ओनली, ब्रह्मा अपने लोक में ही रहते हैं। अच्छा, तो जो बाकी जो होते हैं, जो बाकी आत्माएं हमने स्वर्ग लोक तक, दिन और रात का मीन स्वर्ग लोक तक एनिहिलेशन होता है। और जब ब्रह्मा जी का पूरा 100 लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब सब कुछ कंप्लीट होता है। इवन द ब्रह्मा जी मींस एवरीथिंग फिनिश,
everything goes into Mahavishnu's body. और उस समय जो भक्त हैं वो तो गोलोक चले जाते हैं, ऊपर के प्लेनेट में जो नहीं होते हैं उधर ही रहते हैं, but then again when manifested according to their karma they are into different bodies. So And- everything means सारे पूरे ब्रह्मांड पूरा Yes, सब कुछ करते yes, हैं। yes, everything, whole creation. ऊपर माता से जी, एक और जितने भी क्वेश्चन लोग हैं, मेरा, सारे 14 जो प्लेनेट। जो गोलोक में जब हम मतलब में जब सब कुछ दिव्य होता है, जब हम मतलब स्टार्टिंग जब हुआ था, आध्यात्मिक तो हम जगत ही कैसे फॉल मटेरियल हो गए? खत्म होता है, नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट्स ऑल नहीं मटेरियल। माता जी, मेरा क्वेश्चन है, जब पहले हम गिरे थे, मतलब हम गोलोक से जब हम आए थे नीचे, तो सब कुछ हमारे बुद्धि उस टाइम पे कैसे भ्रष्ट हुई? क्योंकि सब कुछ दिव्य था, हम खाते पीते मतलब सब देखते, एवरीथिंग वाज मतलब दिव्य ही था, तो हमारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट होगी? किस वजह से हो गया हमें? हम कैसे फॉल हो गए? इसका उत्तर मैं आपको प्रपात के एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसको सुनना, थैंक यू माता जी। दैट विल बी मोर क्लियर टू यू rather than my क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है माता जी। नहीं, ये मुझे प्रश्न पहले भी किसी ने पूछा था, अनादि भक्ति ने पूछा था, so I ये answered her, मुझे but now I don't want to answer. I'll send you Prabhupada video. ठीक है? थैंक यू माता All जी। right. I'll share in the group. That will be more authentic and bona fide to you. Okay. Thank you. But please drop a message to me in the WhatsApp so that I can share that thing in group. Okay. यस श्योर माता जी। Okay. किसी और का कोई प्रश्न है? कोई और कुछ कहना चाहे? No. Okay, then we'll stop up here. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे राम Gandharashvantvit ki jai, Shri Samad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the somebody bodies ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow, same time, same place. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.